So once you install the SAP in your system, you will be able to create the order and all. We will go through the practical session how to create transactions, understanding the end user functionality, how end user works, right? So let's get the SAP installed, and then we will start those things. So till that time, let's understand some basic understanding, not related to SAP SD specifically, but it's a general thing that every SAP consultant should know. Okay, that projects, right? What kind of projects you can get after completing this these courses? What are the different projects are there? So you can see in my screen, implementation project, support project, rolled out project, upgradation project, development project. There are different projects are there that you can be assigned after the course, once you crack the interview. It is not mandatory that every one of you will be assigned to same like make implementation or support. Maximum of you will get the support project, because that is something a long lasting project, right? Support project will be there for 10 years, 20 years, 5 years normally it is there. So now let's understand today about all these projects might be. Okay, now let's talk about the implementation project first. वैसे Okay, भाई, सॉरी टू डिस्टर्ब। got it. Sorry, yeah, go ahead. हाँ, असगर बोल रहा हूँ। ये हम लोग का 9 बजे का क्लास था ना। ये तो न्यू बैच है शायद, रिंकू नाम ओ से। ओ ओ ओ ओके, अच्छा 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 अच्छा, मैंने 9 PM तुम लोगों को दिया। करेक्ट 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 करेक्ट। That's why I have also confirmed अच्छा through अच्छा अच्छा WhatsApp. अच्छा अच्छा। ओके ओके फाइन, एनी हाउ उनका अवेलेबिलिटी चेक हुआ था आज, तो दैट इज फाइन। इंटर कंपनी नेक्स्ट संडे होगा, तो फाइन। ज्वाइन 9 AM था, तो ओके ओके, दैट इज माय फॉल्ट। इट इज 7:30 PM only of yours. You need to join from next Saturday also. It will be availability check from Sunday onwards. You people join for batch study one, I think. ठीक है, if you want to बैच revise, स्टडी just वन है। just just go ahead at this time. तुम लोगों ने ओके। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया क्या बैच स्टडी 2 का? हाँ, IPM? लाबोनी है, मैं हूँ, हाँ मैं तीन हूँ। चार जन हैं। अच्छा, then I already gave the time there might be. ठीक है, that's fine. Anyhow availability check was done in that batch. uh, and next Saturday भी वही होगा, Sunday उनका होगा, तो join there for the revisions. You can be here for the वाजे revision of भाई, this as well. That's fine. वाजे चलो भाई लीव बोले लीव हम कर लोग जाते हैं तब। का एग्जैक्ट डेट कौन सा होगा, ये टाइमिंग? 33? नहीं, who is speaking? हम लोग का बैच 33 का एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगा? मतलब सैटरडे को जैसे Same कल same हम same लोग का same same 6:30 बजे। today's timing is fixed. That is 9 PM. ओके ओके। ठीक है, हम लोग लीव कर जाए तब हम लोग संडे को ज्वाइन करेंगे ना, नेक्स्ट हाँ वीक। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चैट में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू। हाँ, अच्छा, तो नाउ द एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, राइट? क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन? अंडरस्टैंड कि एक कंपनी है जो कि एसएपी यूज नहीं कर रही है, दे आर नॉट यूजिंग एसएपी, दे आर यूजिंग सम अनदर ईआरपी सॉफ्टवेयर। ओरेकल हो सकता है, एमएस डायनेमिक्स हो सकता है, कुछ और सिस्टम हो सकता है दैट दे आर यूजिंग, एंड नाउ दे वांट टू इम्प्लीमेंट एसएपी ड्यू टू सम रीजन कि उनका बिजनेस अभी स्ट्रांग हो रहा है। दे वांट अ मोर bigger system who can manage more bigger things. They can so SAP implement करना चाहती है। तो now that is what the implementation project is. ठीक है, कि SAP नहीं है, now they want to implement SAP. Now in to use the SAP, okay, the whole business needs to be designed in the SAP system. It is designed right now on the Oracle system, right? Now to use the SAP for their business, the whole business process needs to be designed in the SAP system, right? That is what the implementation project is. This is Was it called as in other word we can implementation. call it as a migration also?
Not migration. When we say migration word is little confusing, right? Normally migration word we say when we might be upgrade to some different versions. That is also Like they ACG say to migration. S/4HANA. Correct. They also say as a So, migration, that as well. why we can say that data transformation from non-SAP to SAP? Normally, we don't need to say this is the greenfield implementation project. We say from non-SAP to SAP. ठीक है? तो fine. Now we understood. Okay, this is the greenfield implementation. Even implementation have a different categories. This is a greenfield implementation where आपका SAP नहीं था, अभी you are going to use SAP. So now in order to do this, okay, ये करने के लिए कि मैं SAP यूज नहीं कर रहा हूँ और मैं SAP यूज करूंगा, तो देर आर लॉट ऑफ फेजेस आर देयर, बहुत सारा फेजेस है यहाँ पे. तो द फर्स्ट फेज इज व्हाट, कि मैं एक बहुत छोटा कंपनी का एक एग्जांपल लूंगा, एक छोटा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लूंगा कि एक कंपनी था, बहुत छोटा था. नाउ दे हैव ग्रोन अप, माइट बी दे वर यूजिंग अ वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर. नाउ दे आर ग्रोइंग इन अ ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज. दे वांट टू यूज एसएपी. तो एक रिबॉक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. एक छोटा मोटा कोई सॉफ्टवेयर यूज करता था वो लोग. नाउ ड्यू टू सम रीजन दे आर ग्रोइंग ग्लोबली. So they decided to use SAP. Okay. So the first thing they will do is what? तो SAP is a software. SAP एक सॉफ्टवेयर है जो उनको परचेज करना पड़ता है, राइट? ठीक है. SAP एक सॉफ्टवेयर है जो दे हैव टू परचेज. तो चलो SAP कंपनी का नाम भी है, SAP सॉफ्टवेयर का नाम भी है. They will connect with SAP and then purchase that software, right? अब ये जो सॉफ्टवेयर मैं खरीदता हूँ ना, इसके अंदर बहुत सारा वेरिएशंस है, ठीक है. मैं सॉफ्टवेयर को खरीद सकता हूँ, दैट मीन्स मैं ओन करूंगा वो सॉफ्टवेयर को. उसका जो डेटाबेस होगा, उसका जो मेमोरी होगा, उसको मैं ओन करूंगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन प्रीमाइस सिनेरियो, जहां पे मैं एसएपी खरीद लेता हूँ. देयर इज नो मंथली सब्सक्रिप्शन लाइक दिस. मेंटेनेंस का कुछ होगा, लेकिन पूरा डेटाबेस को मैं खुद ओन कर रहा हूँ. डेटाबेस का जो लोकेशन होगा मेरा अपना लोकेशन होगा. उसको मैनेज करने के लिए जो लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे. आई नीड टू हायर द पीपल हु विल बी हैंडलिंग द होल डेटाबेस, होल मेमोरीज एंड ऑल. इसको बोलता है ऑन प्रीमाइस. ओके. दूसरा होता है यहाँ पे हमारा क्लाउड. तो क्लाउड में क्या है, इट इज लाइक अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड थिंग्स दैट I am not going to manage the database and all. SAP itself will manage the database, memory, all those things. कि कितना मुझे database का memory चाहिए, कितना TB ये चाहिए, database का जो location होगा वो SAP के पास ही होगा, right? They will be managing all those things. मेरा काम क्या है, मेरा काम है monthly payment करना उसे, and they will manage all those things. वो लोग handle करेगा सारा कुछ. Sorry to interrupt, Baji. So in such scenario, SAP will also provide the support directly from their end, right? नहीं, not the whole support. Some kind of support will be there, but still you will need a consultant. जो प्रोजेक्ट टीम होगा, that will be needed. अभी SAP अलग राउट में जाएगा आस्ते आस्ते करके कि जहां पे वो अपना डिपेंडेंसी बढ़ाएगा, लेकिन still they could not, because there are lot of peoples will be needed, right? SAP भी अपना उतना मैन पावर उतना कहां से लेके आ जाएगा, ठीक है. तो even it's a cloud, the project team will be needed, who will configure, who will understand the business process, who will support, that will be needed. Okay, that's the cloud. अब एक होता है hybrid model, जहाँ पे some both are there. Might be there are something are on premise as well, and something is managed on the cloud as well. Okay. So these are something on a high level. Okay, as a consultant I don't need to worry about these things, right? As a functional consultant I don't need to worry about these things कि on premise है या cloud है. मेरा जो काम है वो ultimately business को manage करना, business को design करना. So now Reebok is connecting with them and understanding those things and then purchasing the license. कितना जो भी है on premise है ये खरीद लिया. अभी देखो क्या है कि purchasing a software is one thing, right? But designing that software according to the company's business is another thing, right? जैसे कि मैंने लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है. अब अगर लैपटॉप तो बहुत सिंपल चीज है, लेकिन अगर लैपटॉप बहुत कॉम्प्लेक्स होता, इफ लैपटॉप वुड हैव बीन वेरी मच कॉम्प्लेक्स, अगर उसमें एक्सेल को इंस्टॉल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता, तो
तो क्या होता कि अब आई नीड अ पर्सन who will install all the apps, right? All the apps which I need कि एक्सेल ऐप में डाउनलोड करके दे दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करके लैपटॉप को कॉन्फ़िगर कर दो. आई विल नीड अ पीपल हु विल कॉन्फ़िगर दोस थिंग्स, राइट? तो दैट इज हाउ एसएपी एज वेल कि सॉफ्टवेयर तो मिल गया, लेकिन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसको उसको डिजाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माय बिजनेस नीड. So this work will be done by whom? This work will be done by implementation partner. This work will be done by the SAP implementation partner. SAP itself can do it. ऐसा नहीं कि SAP भी करता है, चार्ज ज्यादा लेगा SAP हो सकता है. SAP himself themselves can implement it. SAP Labs बोल के एक कंपनी है जो करती है, चार्ज ज्यादा होता है उनका बहुत ज्यादा. That means that depend upon the agreement with the company हाँ, and SAP. करेक्ट. अल्टीमेटली कंपनी क्या करती है, दे विल यू नो आस्क फॉर द कोटेशन फ्रॉम एवरी कंपनीज कि भाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है. सब कंपनी अपना अपना कोटेशन देती है. लाइक एसएपी लैब भी देगी, माइट भी अपना कोटेशंस कि मैं तुमसे इतना पैसा लूंगा इंप्लीमेंट करने का. टीसीएस बोलेगा मैं इतना लूंगा, एचसीएल बोलेगा मैं इतना लूंगा, कैपजेमिनी बोलेगा मैं इतना लूंगा, राइट? तो हर कंपनी अपना अपना कोटेशन देगा. तो इट इज जस्ट बिकॉज आई नेम दिस कंपनी, ऐसा नहीं कि ये सब कंपनी है. देयर लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी, देयर लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर who do these things, okay, as who implement it. तो नाउ सपोज रीबॉक ने क्या किया, सबके साथ मीटिंग किया, सबका कोटेशन रिव्यू किया, एंड ड्यू टू समथिंग whatever they thought of, they are giving the project to one company, suppose HCL. okay, they are giving the project to HCL. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि HCL got the project, right? HCL को प्रोजेक्ट मिल गया, right? तो नाउ सिंस HCL got the project, अब एक्चुअली में HCL का काम स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो व्हाट HCL विल डू हियर, HCL क्या करेगा, HCL एक प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन करेगा, राइट? HCL will assign a project manager who will be handling these all things. HCL will handle, this project manager will handle the all things, right? तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग वो बंदा सब हैंडल करेगा. नाउ अब चलो काम स्टार्ट हुआ, क्या काम होगा? HCL will have a meeting with Reebok and understand what are the modules required. मतलब on a very high level, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर काम, अब काम को इनिशिएट करना होगा, टीम बिल्ड करना होगा, राइट? दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी. मतलब it is not one person or 2% or 5% who will implement the SAP. There are 100 of the peoples needed. 100, 200, 300, 400 बंदा लगता है एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. It's a very big task. Sorry for the interruption. Go ahead. Will it require SDK as well? SD? SDK, software development kit. Depends. that is not something specific to here. No, it depends upon the project to project, right? Okay. Acha. So now we got the project manager, right? Now that project manager will do all the evaluations on a high level. All those things will be done, and ultimately his objective will be to building the team. Okay, to building the team. Which team? The team of all the consultant which belongs to all different areas. So that project manager would have already understood कि कौन सा एरिया यहाँ पे लगेगा, मतलब कौन सा मॉड्यूल्स यहाँ पे हम लोगों को लगेगा, कितना नंबर ऑफ रिसोर्सेज हम लोगों को लगेगा यहाँ पे, किस मॉड्यूल का कितना रिसोर्स लगेगा. तो दे वुड हैव, बिकॉज दे फाइल द कोटेशंस, राइट, एंड दे वुड हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद देम, दे वुड हैव सम आइडिया अबाउट इट. So they will start the hiring processes and all, and then hire all the people. Suppose SD के 10 बंदे hire किए, MM के 5 बंदे hire किए, finance के 10 बंदे hire किए, करके एक टीम बिल्ड करेगा. Once this team build is done, right, और जो भी हमारा टीम बिल्ड कंप्लीट हो गया, सारा मॉड्यूल, टेक्निकल मॉड्यूल, एबैप हो गया, बेसिस हो गया, फ्यूरी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सिस्टम, ये हो गया. तो अब क्या होगा, एक बार टीम मेरा बिल्ड हो गया, अब मेरा मीटिंग से स्टार्ट होता है. ठीक है, मीटिंग से स्टार्ट होता है. तो नाउ बाजी मेरा क्वेश्चन है, बाजी ये जो आप बता रहे हो, ये क्या अगर इफ इट्स ऑन प्रेमाइस देन ओनली वी आर डूइंग, इफ इट्स ऑन क्लाउड, or maybe if it's a hybrid,
then also will be the same approach कि the तो अभी Reebok तक will का जो take a अभी तक का जो अप्रोच है ना, दिस इज सेम, ठीक है, मतलब टिल नाउ द अप्रोच विल बी सेम, राइट, इट्स अ हाइब्रिड और इट्स ऑन प्रेमाइज। इसके बाद का जो 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 अप्रोच होता है, दैट कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन क्या सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। okay, so this time if it's a hybrid or on cloud, so that time so that time they will pay the rental of personal rental to SAP for taking the licensing, for renting the licensing rental purpose, and then they will also pay HCL or TCS for developing their, like, to configure the system. करेक्ट, मतलब इधर खरीदेगा या फिर रेंट लेगा, बात तो एक ही है ना, अच्छा, इट आवाज डजंट एक बार मैटर मुझे फॉर ये अस। समझाएगा हाइब्रिड में कैसा रहेगा, हाइब्रिड में? सी मतलब हाइब्रिड में इट डिपेंड्स कि किस तरह से उनका सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब सम ऑफ द सिस्टम्स दैट दे हैव, दैट इज ऑन प्रेमाइज, सम ऑफ द सिस्टम दैट दे हैव, दैट इज hybrid mind, because it's not one system, System, right? it seems the We have a is S/4HANA as the well, we have a ATTP database. as well, we have a global trade system as well, we have a transportation system as well. Okay, So so जितने it भी depends. पैकेजेस है SAP का, or some of them might be in on-premise cloud database, and some of them might be in a cloud database. Correct. Okay. Okay, so fine. So now continue with this, right? So अभी क्या हुआ, टीम बिल्ड हो गया, तो टीम बिल्ड कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या स्टार्ट होता है, अब नाउ कंसिडर करना कि अल्टीमेटली वी आर ओनिंग द सिस्टम, हम लोग सिस्टम ओन कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबली इट्स ऑन प्रेमाइज, ओके। अभी क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मीटिंग करेंगे बिजनेस के साथ, वी विल हैव अ मीटिंग विद द बिजनेस। कौन सा बिजनेस, ये रिबॉक का जो भी क्लाइंट का बिजनेस है। तो अभी जो मीटिंग होगा, ये मीटिंग किसके किसके बिटवीन में होगा, अंडरस्टैंड। तो मैं एसएपी सेल्स कंसल्टेंट हूं, एसएपी एसडी कंसल्टेंट हूं, राइट। नाउ एज ए एसएपी एसडी कंसल्टेंट आई विल बी हैविंग अ मीटिंग विद द Sales सेल्स team. सेल्स ऑफ द बिजनेस का जो सेल्स होगा उससे हम लोग मीटिंग करेंगे, अलोंग विद द क्लाइंट सेल्स आईटी, क्लाइंट का जो सेल्स डिपार्टमेंट का जो आईटी होगा वो भी रहेगा उस मीटिंग पे, राइट, ठीक है। तो नाउ 3 डिफरेंट सेग्रीगेशंस इज देयर, राइट। एक है तुम्हारा क्या नाम है, कंपनी जो कंसल्टिंग कंपनी है, उसका टीम है सेल्स का। दूसरा क्लाइंट का बिजनेस है। तीसरा क्लाइंट का आईटी है, मतलब जो क्लाइंट होता है ना, सपोज जैसे तुम्हारा क्लाइंट है, ठीक है, जैसे कि मैं पहले एचसीएल में था, राइट। तो अभी क्या हुआ कि मैं क्लाइंट साइड ज्वाइन किया, तो क्लाइंट में भी बंदे रहते हैं, क्लाइंट विल आल्सो हैव अ कंसल्टेंट्स, एचसीएल विल आल्सो हैव अ कंसल्टेंट्स, राइट। तो अभी क्या होता है कि क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से वो लोग रिव्यू करेंगे जो 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 तुम लोग काम करेंगे। सपोज मैं जो भी काम करूंगा वो मेरा क्लाइंट रिव्यू करेगा पहले, उसके बाद फिर वो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, देन ओनली वी कैन डू दोस थिंग्स। तो वो रिव्यू करने का एक वैलिडेशन होता है क्लाइंट की तरफ से भी, दे विल आल्सो हायर द कंसल्टेंट्स, राइट। तो 3 डिफरेंट एरियाज, one is the HCL or any one company's all the consultants, SDK, क्लाइंट के कंसल्टेंट्स एंड देन बिजनेस। अब ये तीनों मिलके मीटिंग करेंगे, राइट। क्या मीटिंग करेंगे, दे विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस प्रोसेस, कि उनके कंपनी का बिजनेस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। That means देयर the आर business लॉट, workflow. हाँ, पूरा बिजनेस का जो फ्लो उनका, सपोज एक ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस हो रहा है, तब मैं ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग का ऑर्डर बनता है, अच्छा ठीक है, हाउ डू यू क्रिएट एन ऑर्डर, अच्छा दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ऑर्डर, व्हाट हैपेंड व्हेन यू क्रिएट एन, लाइक हु आर योर कस्टमर्स, आपका ये कस्टमर्स है, हाउ डू यू रिसीव द ऑर्डर्स, दिस इज हाउ के ईडीआई के थ्रू वो लोग रिसीव करते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ऑर्डर क्रिएशन, ओके डिटेल ये इस वो सिस्टम पे जाता है, वहां से कंफर्मेशन आता है, ये चेक होता है, वो चेक होता है, अगर सेल्स ऑर्डर का वैल्यू इतना होता है तो एक अप्रूवल लगता है, कौन अप्रूव करता है, ये अप्रूव करता है, ये अप्रूव किया तो फिर क्या होता है, दूसरा अप्रूवल पे जाता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। ऑर्डर में That means प्राइसिंग कैसे every कैलकुलेट, in and out strategy will be एग्जैक्टली discussed and come to the एग्जैक्टली। conclusion. तो देयर विल बी अ ह्यूज नंबर ऑफ डिस्कशंस हियर, राइट। एक बड़ी कंपनी का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है ना, इट इज अ वेरी बिग इम्प्लीमेंटेशन, लाइक सपोज सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में 2 साल 3 साल लगता है, राइट। तो वो 2 साल 3 साल क्या करते हैं हम लोग, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, खाली मीटिंग ही होता रहता है। तो नाउ अच्छा वाजी, नाउ ये जो अप्रूवल्स पे जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया, सो द मैनेजर और द मैनेजमेंट विल अप्रूव इट इन द टूल, और हाउ
the इट approval? डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। अभी अभी हम लोग उतना कोड लेवल पे डिस्कस नहीं करें। डिपेंड्स कि मैं Okay. एसएपी का उसको मतलब दे विल बी चेकिंग द एसएपी इनबॉक्स और डायरेक्टली ईमेल में चला जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ इट इज, राइट। आप डिजाइन कर सकते हो कि उनके डायरेक्ट आउटलुक में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, वो आप लोग से अप्रूव करेंगे तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन एसएपी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो नाउ अभी ये मीटिंग होगा, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस प्रोसेस। अभी जो जो लीड करेगा ये कौन करेगा? जो तुम्हारा प्रोजेक्ट लीड कर रहा है, प्रोजेक्ट जो मैनेजर। डिस्कशन कर रहा है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं मैनेजर। करेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेन जो ओके। रोल होता है, प्रोजेक्ट Project lead. मैनेजर इज ओनली फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, ही डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट्स। उसको सब्जेक्ट के सो बारे में दिस इज द कंसल्टेंट। उतना आइडिया, एग्जैक्टली। तो कंसल्टेंट में भी अभी वहां पे क्या होगा, एक सॉल्यूशन आर्किटेक्चर होगा, देयर विल बी अ हाँ। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होगा जो हु नोज मल्टीपल मॉड्यूल्स, राइट। मल्टीपल मॉड्यूल्स का उसको आइडिया है। अभी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में भी क्या होता है कि हर एक मॉड्यूल का एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो सकता है, कि एक ये एक एसडी का एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है। अभी उसके नीचे आ जा गया एक जो एसडी का लीड, एक हो गया सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, उसके अंदर हो गया लीड। अब वो लीड के अंदर फिर बहुत सारा सीनियर कंसल्टेंट है, उसके बाद फिर कंसल्टेंट है, फिर जूनियर कंसल्टेंट है, राइट। तो ऑल दिस हायरार्की विल बी देयर। तो अल्टीमेटली जो मेन लीड करता है वो लीड है, एंड देन द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, वो लोग मेन लीड करेगा प्रोजेक्ट को फ्रॉम योर मॉड्यूल पर्सपेक्टिव, कि क्या डिस्कशन करना है, क्या क्वेश्चंस करना है। इट इज नॉट अ इजी जॉब, राइट। कोई जूनियर पीपल को नहीं मिलता है ये सब चीज इंप्लीमेंटेशन में। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं कि कोई भी बंदे को मैं दे दिया, ठीक है। there will be a huge experience, will be 15 years 20 years of experience is needed to lead this kind of big projects, okay। तो अब इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करते हैं, जो भी उसका आउटकम आता है हम लोग उसको हम नोट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत पुराना प्रोसेस है, समझ बता रहा हूं मैं, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी ओल्ड, ठीक है, बट स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जो भी आउटकम हमारा आता है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका एक एमओएम बनेगा, राइट। उसका एक हम लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो ऑल दोस थिंग्स विल बी डॉक्यूमेंटेड एंड दैट डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड एज अ बिजनेस ब्लूप्रिंट, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स विल बी डॉक्यूमेंटेड एंड जो डॉक्यूमेंट बनेगा फाइनल, ठीक है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस ब्लूप्रिंट, ठीक है। नाउ ये ब्लूप्रिंट जो होगा, दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अस, बिकॉज इसका साइन ऑफ देगा हमारा क्लाइंट हमें, ठीक है। द क्लाइंट विल गिव अस अ साइन ऑफ एंड देन ओनली दिस वी विल डिजाइन द सिस्टम। मैंने पहले हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन किया, राइट। अभी तक हम लोगों ने एसएपी टेस्ट नहीं किया। वी आर नॉट टचिंग एसएपी, वी आर नॉट डिजाइनिंग एनीथिंग इन एसएपी until this blueprint is sign off. Once my blueprint is sign off, अब इस blueprint के हिसाब से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, राइट, अभी वो लोग कैसे करते हैं। अभी blueprint में भी बहुत सारा चीज होता है। ब्लूप्रिंट में भी हमारा बहुत सारा पार्ट होता है। एक होता है एक कंपनी का पूरा ऑर्ग स्ट्रक्चर, हम लोग वहां पे डालेंगे। ऑर्ग स्ट्रक्चर बोले तो द ऑर्ग Hierarchy. स्ट्रक्चर इज लाइक कि भाई इस कंपनी, दिस कंपनी हैव दिस मच ऑफ चाइल्ड कंपनीज। Now this company operate in this place, it have 5 different warehouses and 5 different sales organizations, ठीक है। तो यहाँ पर से वो माल सप्लाई करती है, all the org structures basically, ठीक है। तो वो हम लोग मेंशन करेंगे अपने we have to mention in the blueprint document, and then all the different business processes कि currently वो लोग जो कर रहे हैं as is, जिसको हम बोलते हैं as is, currently all the business process is like this is how they are doing it, okay। कि वो लोग सेल्स करते हैं वन प्रोसेस, दे डू द रिटर्न्स एज वेल। रिटर्न्स कैसे करते हैं वो लोग, ये सब स्टेप फॉलो करते हैं। अगर उन लोगों को करेक्शन करना है वो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर उनको इंटर कंपनी विद इन कंपनी अगर कुछ सेल करना है तो वो लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, ऐसे करते हैं। तो दिस इज समथिंग एज इज, जो अभी करंटली वो लोग कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड सेक्शन आता है टू बी सेक्शन। टू बी सेक्शंस में क्या होता है कि now since we understand the as is, now as a SAP consultant I am proposing how they will be doing it in SAP, ठीक है। that is in to be section, how they will be doing it in SAP, ठीक है। that's third section, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि अच्छा सेल्स प्रोसेस आप Oracle में ऐसे करते थे, that is in as is, SAP में आप ऐसे करोगे कि these are the steps that you will be doing ऑन अ हाई लेवल। चार्ट में लोग डिस्क्राइब करेंगे, ये आप पहले ऑर्डर बनाओगे, फिर ये करोगे, फिर ये फ्लो में जाएगा, अप्रूवल में जाएगा, ये अप्रूव करेगा, फिर ऐसे होगा, फिर आप डिलीवरी ऑर्डर बनाओगे, फिर आप
all those things will be created in a chart might be. ठीक है. Similarly, आप returns कैसे करोगे, आप invoice correction कैसे करोगे, आप intercom, all those things will be documented. तो क्या पढ़ा? Org structure as is, to be, and then एक होता है gap का sections. ठीक है. एक होता है gap का section. Gap मतलब क्या होता है कि SAP might be very big software, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, बट इट डजंट मीन कि वो दुनिया का हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट को का सोल्यूशन दे सकता है. समझना. इट डजंट मीन कि SAP will have a inbuilt solution for all the different business requirement of all the companies. That is not possible, right? So that means, in spite of being a leader of the globally, SAP will have a issues on some of the business processes, right? तो अब उस केस में क्या होगा कि जहां पे as is है लेकिन उसका to be का inbuilt solution नहीं है हमारे पास. What is the meaning of inbuilt solution? Inbuilt solution मतलब कि आपके मोबाइल पे inbuilt functionality है कि आप dual SIM यूज कर सकते हो. ठीक है. आप dual SIM यूज कर सकते नहीं हो. है. हाँ, मतलब जो भी तो now That but is supposed to be the tailor-made solution has been offered by SAP to the exactly peripheral company. लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपका मोबाइल इज नॉट डेवलप इन अ वे कि आप उस मोबाइल को एक्सटेंड कर सकते हो कि अभी नहीं है लेकिन मैं अगर कंपनी को बोलूंगा तो वो कर देगा मेरे मोबाइल. वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन SAP वो ऑप्शन देके रखता है कि माइट बी कोई इनबिल्ट सोल्यूशन आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन गेट इट डन विद द हेल्प ऑफ डेवलपर्स. आपको मैंने डेवलप करने का फंक्शनैलिटी दे दिया, मैंने वो फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि यू कैन गेट इट डेवलप्ड विद द डेवलपर्स. आप SAP कोड करवा करके डेवलप करवा लो उसको. तो वो क्या SAP वाले के टीम करेंगे या फिर SL के टीम करेंगे? ये हमारा टीम करेगा. हमारे टीम में कुछ डेवलपर्स होते हैं, SAP डेवलपर्स. हाँ, ABAP वाला. we have to get it done, ABAP. ठीक है. तो now as is में 90% of the processes will be mapped in SAP with the inbuilt solutions, which is already SAP में solution है उसका, right? Now 10% might be उसका solution SAP के पास inbuilt नहीं होगा, तो वो आएगा gap में. That will be coming as a gap, right? And that gap will be fulfilled as a ultimately development. उसका development कराना पड़ेगा हम लोग. So that will also be mentioned in the blueprint document. ठीक है. तो ये हम लोगों ने हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग लिया. ठीक है. अभी देखो क्या होता है ना कि सिंस SAP implementation is going on from long time, right? Means 25 years, 30 years implementation is going on. So there are some different strategies SAP have given us to follow for the implementation project. इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए SAP ने हम लोगों को बहुत सारा स्ट्रैटेजीज दे के रखा है. मेथोडोलॉजीज बोलते हैं हम लोग उसको. मेथोडोलॉजी दे के रखा है उसको हम लोग वी फॉलो दैट व्हेन वी डू द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट. Like ASAP methodology, right? जैसे कि ASAP methodology, that is what it is there, ASAP methodology. So ASAP methodology is one of the oldest methodology is there from last 25 years that we are following. But right now we have other Parijat has raised his hand, so he wants to say something. Yes, sorry to interrupt, Vaji. The gap what you are mentioning, that is actually the business requirements. I mean, the customer's requirement, which is not there in SAP. So we'll follow, fill it up. Exactly. Okay. अच्छा, fine. So now see कि ASAP methodology is one of the methodology. There are other methodologies as well. Activate methodology is also one of the methodology. Okay, there are other methodology as well to implement the project, right? तो but एक project में क्या methodology follow हो रहा है वो project के ऊपर depend करता है. ठीक है. It depends what methodology they follow. But interview में जनरली ये वाला बहुत ओल्ड मेथोडोलॉजी है, तो दे आस्क द क्वेश्चंस. ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि देखो जो इंटरव्यू लेते हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपीरियंस ही होगा, 7 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस ही होगा. तो दे आर द अल्टीमेटली ओल्ड पीपल्स, मतलब दे आर नॉट द रिसेंट जो भी अभी इंटर किए हैं. तो दे वुड बी वर्किंग माइट बी इन ECC मोर देन द S4 HANA. तो दे वुड बी स्टिल
connected with this ASAP methodology. So since they know it, they will ask from it only. Okay. अब दो एक ये मेथोडोलॉजी क्या बोलता है, ये मेथोडोलॉजी बोलता है कि भाई आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो फेजेस है उसको आप डिवाइड कर दो अलग अलग फेजेस में. द होल इम्प्लीमेंटेशन वर्क is divided into different phases. Okay, the first phase is a project preparation phase. Okay, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया. मतलब यहाँ पे क्या होता है, हायरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, हायरिंग कंसल्टेंट्स, बजट्स, स्कोप ऑफ वर्क, SOW स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंटेशन होता है. All these things will be done in the project preparation. So as a functional consultant, we don't have any role on the project preparation phases and all, right? दूसरा आता है हमारा बिजनेस ब्लूप्रिंट का फेज. इस फेज में ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया, राइट, कि इस फेज में हम लोगों का टीम बिल्ड हो जाता है. एंड देन टीम बिल्ड होने के बाद फिर वी मेट विद बिजनेस, अंडरस्टैंड देयर प्रोसेस, org structure and document and then document creation. All the document creation will be done. तो that document का नाम क्या होता है, business blueprint document. ठीक है. Now after this, sorry Baji, यहाँ पे एक question है, like since you are from also life science domain, so I just wanted to map it, that business blueprint and then document creation. So does it mean that the user requirement, config spec, this type of documentation? Yeah. No, see, a lot of documentation will be there. Yeah. There are SOPs will be there. UAT script will be there. Training documents will be there. So okay, you are mentioning from those things, to but production. Those things are not coming in the blueprint phase. Okay, in the blueprint phase, it is only the blueprint document, understanding the process and org structure, and then document. This document creation is referring to the blueprint document only. Oh, okay. So in ASAP methodology, okay. So even apart from blueprint documentation, there are other documentation as well. KDS document will be there. Okay, we will understand those things. Okay. Acha. So now the blueprint is done. Now once the blueprint sign off is done, okay, then we are moving to the next phase, which is the realization phase. Okay. So the realization phase is what? Realization phase is the phase where we actually starting work in SAP. ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में स्टार्ट कर रहे हैं SAP में वर्क करना. तो ब्लूप्रिंट में हमारे पास पूरा वो लिखा है, राइट, क्या करना है हम लोगों को. तो बाय जस्ट रिफरिंग द ब्लूप्रिंट एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन, we will start the configuration in the SAP, designing the SAP. We will follow the business layout that has been directed in the documentation, and with that documentation, we will do a configuration, right? Exactly. So so when we say a configuration, right, what is the meaning of the configuration here? तो ये concept को समझना कि when we say configuration, it is something like, जैसे कि मैंने बोला SAP ने इनबिल्ड सोल्यूशन दिया है. जैसे कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई एज ए क्लाइंट मैं बोल रहा हूँ कि हमारे कंपनी में रिटर्न्स होता है, तो वो रिटर्न्स जो है बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारे कंपनी. ओके, रिटर्न्स इज लाइक कि एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा रिटर्न्स फिजिकली एग्जीक्यूट करता है. एंड देन वंस एवरीथिंग इज डन, देन दे आर सेंडिंग अस अ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन फॉर द रिटर्न, एंड देन मैं रिटर्न ऑर्डर बना, ऑटोमेटिकली वो रिटर्न ऑर्डर बन जाता है. And then system will issue the credit note and all. This is my business requirement, right? So now in this process, right, SAP में जो inbuilt solution है वो क्या है, right? SAP में जो inbuilt solution है वो क्या है? First of all, after understanding this requirement, okay, you need to think कि is it something a general requirement, मतलब ऐसा requirement है जो कि बहुत सारा फार्मा कंपनी करती होगी, या or it is a very specific requirement which is very much specific to this company, right? So now after thinking it, you will have answer that okay, no, this is how I think lot of companies will be doing it, right? फार्मा में बहुत कंपनी ऐसी करती होगी, थर्ड पार्टी को दे दिया, थर्ड पार्टी करता होगा, and then they will be giving us the ये, तो रिटर्न ऑर्डर बनेगा, रिटर्न ऑर्डर के बाद फिर हम उसको क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, दैट्स इट. तो नाउ सिंस यू आर थिंकिंग ओके इट्स अ जनरल थिंग, राइट, तो यू हैव टू थिंक कि एसएपी के पास इनबिल्ट सॉल्यूशन भी होगा, राइट. तो एसएपी के पास जितना भी जनरल प्रोसेसेस है इसका सॉल्यूशंस है. इफ यू गो इन एसएपी साइट्स, S/4HANA का बेस्ट प्रैक्टिस साइट जाओगे ना, तो हर एक बिजनेस प्रोसेस के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस एसएपी ने डेवलप किया है.
वो बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आपको वो प्रोसेस करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, कि पहले रिटर्न ऑर्डर बनेगा, उसके बाद ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप, उसका पूरा फ्लो चार्ट दे ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, उस प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन एसएपी में करना पड़ेगा, वो भी ऑलरेडी एसएपी का डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी है वहां पे। तो नाउ अभी हमारा यहाँ पे काम क्या होता है कि सिंस एसएपी ने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है सब कुछ, अभी मुझे बस पता होना चाहिए कि एसएपी ने क्या क्या सॉल्यूशन दिया है सेल्स से रिलेटेड। अभी मैं समझो अच्छा ये रिक्वायरमेंट है क्या, तो मैं बस उसके कॉन्फ़िग को कॉपी कर लेता हूँ। अंडरस्टैंड, आई आई एम नॉट बिल्डिंग समथिंग न्यू, क्योंकि एसएपी के पास ऑलरेडी सोल्यूशन है। एसएपी का जो दिया हुआ कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, एक्चुअली जनरली यूज नहीं करते हैं। हम लोग इसको कॉपी करके नया बनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आगे चल के जब अगर मैं अपग्रेडेशन करूंगा तो एसएपी अपने सॉल्यूशन के अंदर चेंजेस करेगा, राइट? तो मेरा भी चेंज हो जाएगा सिस्टम फिर, क्योंकि मैंने उसका यूज किया। तो इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते, हम लोग उसको कॉपी करके अपना यूज करते हैं। तो अगर वो अपग्रेड करेगा तो उसका चेंज होगा, मेरा सिस्टम, मेरा जो चेंज नहीं होगा, राइट? तो आई एम कमिंग टू यू इंद्रजीत। तो नाउ उसने जो सॉल्यूशन, मैं उसको जस्ट कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके हम लोग उसको यूज करेंगे। अभी मैंने जो तुमको रिक्वायरमेंट दिया, इसमें क्या रिक्वायरमेंट, दो रिक्वायरमेंट था। एक रिक्वायरमेंट है the receiving part, the message, I need to receive the message and then automatically the RMA return order will get created. ये जो पार्ट है, this cannot be a inbuilt solution, याद रखना, this cannot be a inbuilt 100% inbuilt solution. Receiving the message, Your voice is breaking. is it to I everyone? didn't get. Oh, Sapan, maybe it's your network No, problem. No, it's I okay. can Yes. I can Not listen from us. properly. Even Parijat Yeah, is also same here. responding. Fine. So what I am saying, after hearing the requirement, right? You are checking, okay, is it a general or it's very much company specific? तो आपको लगा नहीं, दिस इज जनरल। तो जनरल मतलब क्या था, क्या रिक्वायरमेंट था कि भैया मैं एक मैसेज रिसीव करूंगा थर्ड पार्टी से रिटर्न्स का, जैसे मेरा सिस्टम रिसीव करेगा एक रिटर्न ऑर्डर जनरेट हो जाएगा एंड देन आई विल गिव द क्रेडिट नोट टू द कस्टमर। तो रिटर्न ऑर्डर एंड देन क्रेडिट नोट, ये दो स्टेप है, राइट? यहाँ पे एसएपी सिस्टम पे। एंड देन द फर्स्ट वन इज द रिसीविंग द मैसेज। तो समझना, रिटर्न ऑर्डर बनाना एंड क्रेडिट मेमो बनाना, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी, इनबिल्ट फंक्शनैलिटी। उसका एसएपी के पास सॉल्यूशन ऑलरेडी होगा, आपको बस कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, दिस इज अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, बट आपको पता होना चाहिए कि एसएपी ने क्या कॉन्फ़िग किया है, तब आप जाके कॉपी करोगे, अदरवाइज कॉपी कैसे करोगे आप, राइट? नाउ अभी जो फर्स्ट पार्ट था, रिसीविंग द मैसेज एंड देन क्रिएटिंग द ऑर्डर, तो ये कभी 100% इनबिल्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? इसका भी इनबिल्ट सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट क्या एक लिमिट तक है। क्यों? क्योंकि आपका थर्ड पार्टी आपको क्या डेटा भेज रहा है, राइट? उसके बाद आपका सिस्टम से उसका सिस्टम को कनेक्ट करना, राइट? उसके बाद आपका डेटा से उसका डेटा को कनेक्ट करना, क्योंकि उसका सिस्टम में ऑर्डर का जो फील्ड है, वो आपके सिस्टम पे ऑर्डर का फील्ड है, वो दोनों अलग अलग, उसको लिंक करना पड़ेगा, राइट? कि वो ऑर्डर नंबर भेजेगा तो वो मेरा, उसका सोर्स मेरा डेस्टिनेशन, वो दोनों को लिंक करना पड़ता है, राइट? मैंने काइंड ऑफ अ ट्रांसलेटर, ठीक है, तो वो करना पड़ता है। तो इनबिल्ट सॉल्यूशन कैन नॉट बी 100% ऑन दीज केसेस, बिकॉज आपको उसे सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको मैपिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा, राइट? तो एसएपी इन सब केसेस में जितना इनबिल्ट सॉल्यूशन दे सकता है दे दिया है, कि एसएपी ने इनबिल्ट सॉल्यूशन दे दिया, मैसेज में रिसीव करो, इसका सॉल्यूशन इनबिल्ट है। जैसे वो मैसेज रिसीव हो जाएगा ऑटोमेटिकली रिटर्न ऑर्डर, उसका भी इनबिल्ट सॉल्यूशंस है। लेकिन जो इंटरफेस कनेक्टिविटी है वो आपको करना पड़ेगा, डेवलप करना ही पड़ेगा। तो दैट इज वेयर अ गैप इज ऑल्सो कमिंग, राइट? एक गैप भी आ रहा है और एक स्टैंडर्ड इनबिल्ट सॉल्यूशन भी है, राइट? तो फाइन, तो वी वर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन वर्ड, इट इज वेरी मच सिंपल। एसएपी ने सॉल्यूशन दिया है, उसको बस मुझे जानना है और कॉपी करना है, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ऑब्वियसली अगर जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो सिस्टम पे, तो आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो याद रखना, टेस्टिंग का स्कोप बहुत होता है यहाँ पे, देयर विल बी अ ह्यूज टेस्टिंग स्कोप। यूनिट टेस्टिंग किसमें बोलते हैं? यूनिट टेस्टिंग इज कॉल्ड एज लाइक कि मैं
एक कॉन्फ़िगर किया, मैं बस उस स्पेसिफिक पोर्शन को अच्छे से टेस्ट करता हूं कि दैट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग, FUT। ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या होता है कि अब मैंने जो भी चेंज किया मैं उसको टेस्ट कर लिया, लेकिन मैंने एंड टू एंड टेस्ट नहीं किया माइट भी। ठीक है, बिकॉज दैट विल बी डन इन द SIT, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, जो भी हमें कॉन्फ़िगर किया, जो भी एनहांसमेंट किया, हमसे वही टेस्ट किया अभी। एग्जैक्टली वही टेस्ट किया, पूरा साइकिल टेस्ट नहीं किया आई कैन से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं SIT, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इन दिस केस द होल साइकिल विल बी टेस्टिंग। लाइक सपोज अगर मैं एक ऑर्डर में कुछ चेंज कर रहा हूं, देन सिर्फ वो ऑर्डर टेस्ट नहीं करूंगा, मैं ऑर्डर से मैं डिलीवरी भी करूंगा, डिलीवरी से मैं बिलिंग भी करूंगा, बिलिंग से पूरा साइकिल, मैं पूरा पेमेंट भी लूंगा, राइट? एग्जैक्टली। उसके बाद मैं रिपोर्ट्स भी चेक करूंगा। So all the cycle will be tested in the as a part of the SIT, right? That is what the integration testing means is. So practical world में you will hear FUT, functional unit testing, SIT, system integration testing. Okay? अच्छा, वाजिद एक बात पूछना था, जो भी SAP डेवलप या कॉन्फ़िगर होता है, what all they follow agile or waterfall method? नहीं मतलब अगेन डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट? दे फॉलो ASAP एज वेल, दे फॉलो एक्टिवेट मेथोडोलॉजी एज वेल, दे फॉलो अजाइल मेथोडोलॉजी एज वेल। इट डिपेंड्स, ये तो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, इट इज नॉट समथिंग फिक्स। एक टाइम तो जो चला आ रहा था वो था ASAP मेथोडोलॉजी। एवरीवन यूज्ड टू फॉलो द ASAP मेथोडोलॉजी। हम लोगों ने भी जो भी स्टार्टिंग में किया 7 साल 8 साल पहले, इट वाज अ ASAP मेथोडोलॉजी। अब जाकर जो S/4HANA में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आ गया है ना, उसका फंडा चेंज हो गया है। एक्टिवेट मेथोडोलॉजी अभी लोग यूज कर रहे हैं। एक्टिवेट मेथोडोलॉजी इज लाइक कि SAP के पास सब प्रोसेस का सॉल्यूशन है। ठीक है, बस एक्टिवेट करो उसको, कंपनी को रिप्रेजेंट करो कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। कंपनी बोलेगा मुझे यहाँ पे चेंज चाहिए, यहाँ पे चेंज चाहिए, आप उसको चेंज करो। दैट इज व्हाट द एक्टिवेट मेथोडोलॉजी इज। ठीक है, बट स्टिल कंपनी आर फॉलोइंग ASAP एज वेल, डिपेंड्स। ठीक है, अच्छा वाजिद, आपने FUT कहा, फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग, SIT का सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन टेस्टिंग। करेक्ट। तो ये तो अल्टीमेटली एज ए पार्ट ऑफ द रियलाइजेशन। हाँ, गुड। ये जो आप SIT बोले, तो ये क्या रिग्रेशन टेस्टिंग बोल सकते हैं इसको? मतलब SIT के अंदर देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग एज वेल, राइट? मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि सपोज मैं एक ऑर्डर में चेंजेस किया, राइट? अब बाकी फंक्शनलिटी भी चेक कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, वी हैव टू चेक द अदर फंक्शनलिटी एज वेल एज अ पार्ट ऑफ द रिग्रेशन। Actually, existing functionalities will be impacted or not after the new change. That is called as regression. Yeah, correct. So systematic integration testing, we will do the regression testing, lot of regression testing in this. Okay. Along with the regression testing as well. So now, as a part of this realization phase, right? This all ultimately, I am satisfying myself that everything is done. I developed it. I completed the FUT. I completed the SIT. I am done from my side. Okay. Now it comes to the UAT. मतलब अब मैंने कर दिया अपने हिसाब से सारा, आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई एंड। नाउ आई विल गेट दिस टेस्टेड फ्रॉम द क्लाइंट। एग्जैक्टली, यूजर्स लोग टेस्ट करेगा। तो वो कहाँ पे होगा? अब आता है हमारा नेक्स्ट फेज, फाइनल प्रिपरेशंस। अब फाइनल प्रिपरेशंस में जाने से पहले वी हैव टू कंसिडर सम फ्यू थिंग्स, राइट? कि हम लोग जो SIT करते हैं, FUT इज फाइन, बट जो SIT करते हैं ना, वो लोग, सिंस आई एम डूइंग द होल साइकिल टेस्टिंग, ओके, तो इट विल बी विद अ रियलिस्टिक डेटा मतलब क्या हुआ? कस्टमर का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा, प्राइसिंग का डेटा। तो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब मैं एक ऑर्डर बनाता हूं एक प्रोडक्ट का, अंडरस्टैंड, एक प्रोडक्ट का जिस प्राइस में मैं सेल करता हूं, एग्जैक्टली मुझे वैसे ही करना है SIT में भी कि वही प्राइस, वही कस्टमर, वही प्रोडक्ट को जो सेल होता है, एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो नीड्स टू बी रेप्लिकेटेड। ठीक है, अगर SIT आप उस तरह से करते हो तो ही UAT सक्सेसफुल होता है। अगर आप SIT अपने डेटा से कर लोगे, देयर विल बी इश्यूज इन द UAT, बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग टू UAT, अंडरस्टैंड, यूजर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से होता है कि वो जो करता है प्रोडक्शन में वही करेगा UAT सिस्टम पे। वो अगर आप उसको बोलोगे ये कस्टमर से करो, वो नहीं करेगा। नो, वी डोंट सेल दिस प्रोडक्ट टू दिस कस्टमर, राइट? well, जस्ट टेस्टिंग ही तो है, कर लो। नहीं, वी विल नॉट डू इट, व्हाई शुड वी डू इट? तो
एग्जैक्टली जो प्रोडक्शन पे वो जिस तरह से ऑर्डर बनाता है एज ए पार्ट ऑफ टेस्टिंग, हाउ डज इट मैटर कि मैं प्रोडक्ट इस कस्टमर को सेल कर दूं, राइट? बट दे विल नॉट डू इट. They will exactly replicate the same transactions like production in the UAT system. मतलब क्या हुआ? Before you start these testings and all, UAT आपका सारा master data work complete होना चाहिए UAT system पे. माने there are separate systems available. समझना, मैं जो FUT करता हूँ ना, वो एक development system पे करता हूँ. फिर वो सारा चेंज क्वालिटी सिस्टम पे मूव होता है मेरा. we will continue this session for the landscape tomorrow in the next Saturday, जहाँ पे हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो डेवलपमेंट सिस्टम पे हम लोग सारा FUT करते हैं, उसके बाद सारा चेंज को मूव करते हैं क्वालिटी सिस्टम पे, जहाँ पे हमारा SIT होता है. फिर हम लोग सारा चेंजेस को मूव करते हैं प्री प्रोड सिस्टम पे, जिसको हम लोग UAT सिस्टम भी बोलते हैं. तो उस सिस्टम पे अल्टीमेटली क्लाइंट का एक्सेस होता है, एंड देन क्लाइंट विल बी डूइंग द UAT देयर. ठीक है, क्लाइंट विल बी डूइंग द UAT देयर. तो बिफोर द UAT इज गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, बिफोर द UAT इज गेटिंग स्टार्टेड, वी हैव टू कंप्लीट ऑल द मास्टर डेटा टास्क. ठीक है, कि आपका सारा जो एक्चुअल कस्टमर का लिस्ट है जो प्रोडक्शन में वो लोग यूज करते हैं, दैट इज देयर इन द UAT सिस्टम एज वेल. कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का नेम, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट. अगर एड्रेस भी गलत होगा वो लोग मार्क कर देगा इट्स नॉट पास्ड, क्योंकि कस्टमर का एड्रेस गलत आ रहा था मेरे इनवॉइस में, राइट? तो एवरीथिंग शुड बी करेक्ट. प्रोडक्ट का सारा डेटा, प्राइस का सारा डेटा, ठीक है, ऑल दोज आर द मास्टर डेटा टास्क. तो हमारा मास्टर डेटा अपलोड होता है. मास्टर डेटा अपलोड का एक अलग से टीम होता है जो कि मास्टर डेटा सारा जो कस्टमर का लिस्ट है वो एक्सेल फाइल रहेगा या फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, they will do it. There are a lot of things will be there. They will migrate all the MDM data team, from right? the legacy system to SAP system basically. क्या हुआ? That is MDM team who takes care about master data. हाँ मैंने मास्टर डेटा मैनेजमेंट, दैट्स करेक्ट. अच्छा, तो नाउ दैट इज वन टास्क, राइट? अभी क्या हुआ, मास्टर डेटा एक पार्ट हो गया. अब आपको सारा चेंजेस को मूव करना पड़ेगा UAT सिस्टम पे. दैट इज व्हाट इज टॉकिंग मूवमेंट ऑफ ऑल द चेंजेस टू UAT सिस्टम. मास्टर डेटा अपलोड, उसके बाद यूजर का ट्रेनिंग. तो अब देखो UAT तो वो करेगा, लेकिन कैसे करेगा, राइट? दे डोंट नो द SAP. वो तो SAP का बंदा ही नहीं है वो लोग. यू हैव टू ट्रेन देम द SAP, हाउ SAP वर्क्स, बेसिक्स, राइट? अगेन देयर विल बी अ 2 months ऑफ ट्रेनिंग, 3 months ऑफ ट्रेनिंग विल बी देयर, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा यूजर्स लोगों को कि दिस इज हाउ SAP वर्क्स. आपको ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा पहले, एंड देन काइंड ऑफ उसको फॉलो करके वो लोग दे विल ट्राई टू प्रैक्टिस इट एज वेल. तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हर टेस्टिंग का एक स्क्रिप्ट होता है, राइट? वट एवर टेस्टिंग दैट वी डू, वी हैव टू फर्स्ट डिजाइन द स्क्रिप्ट्स. ओके, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस मैंने बिल्ड किया, तो अब ये प्रोसेस के लिए मुझे क्या क्या सिनेरियोज टेस्ट करना पड़ेगा, उस सिनेरियोज के अंदर कौन कौन सा स्क्रिप्ट, लाइक वन सिनेरियो कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट, राइट? लाइक मैं बोलता हूँ ऑर्डर टू बिलिंग, ऑर्डर टू कैश. नाउ ऑर्डर टू कैश कैन हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स. ओके, लाइक सपोज ऑर्डर क्रिएशन का एक स्क्रिप्ट है, राइट? अब ऑर्डर क्रिएशन एक स्क्रिप्ट हो गया. ऑर्डर क्रिएशन के बाद ऑर्डर वैलिडेशन का एक स्क्रिप्ट है. अभी ऑर्डर वैलिडेशन के अंदर अगर कुछ ब्लॉक्स आ जाता है, उस ब्लॉक को रिमूव करने का एक स्क्रिप्ट है. डिलीवरी क्रिएट करने का एक स्क्रिप्ट है. डिलीवरी के अंदर पिकिंग का. तो वन सिनेरियो कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, एंड डिफरेंट स्क्रिप्ट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द डिफरेंट बिजनेस यूजर्स, राइट? तो ये पूरा जो डिजाइन है स्क्रिप्ट का आपको करना पड़ेगा, राइट? कि बहुत सारा सिनेरियोज होगा, राइट? सपोज आई हैव अ 20 सिनेरियोज. Now against 20 scenarios we have a 200 scripts, right? तो आपको पूरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली. आप एज ए पार्ट ऑफ द SIT यू आर राइटिंग ऑल दोस स्क्रिप्ट्स. उसका वैलिडेशन होगा कि आपका जो क्लाइंट है वो रिव्यू करेगा सारा स्क्रिप्ट्स को, एंड देन दे विल अप्रूव दोस स्क्रिप्ट्स एंड ऑल. तब जाके फिर वही स्क्रिप्ट UAT में भी फॉलो होता है जनरली. तो वो स्क्रिप्ट लिखना किसका काम है? तुम्हारा काम है, राइट? यू हैव टू राइट द स्क्रिप्ट्स एंड ऑल. ओके, उसके बाद फिर you have to give that script to the users. They will test it with the help of this scripts only. Script should be written in that way कि एक नॉन SAP बंदा भी उसको पढ़ के कर पाए. कि मैं बोलूंगा कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे जाओ, ये डालो, यहाँ पे जाओ, ये डालो, उस लेवल का स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है हम लोगों को यहाँ पे. Like a PPT, right?
SOP, SOP एक काइंड ऑफ स्क्रिप्ट ऐसे लिखेंगे कि काइंड ऑफ SOP उसमें है, मतलब एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। नॉर्मली वो एक्सेल फाइल में होता है, एक्सेल फाइल में या वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग स्क्रिप्ट बना के देते हैं। देयर विल बी सम टूल्स एज वेल जहां पे स्क्रिप्ट बनता है, इट डिपेंड्स। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ, अच्छा, तो ये हो गया हमारा UAT। सो UAT विल बी डन बाय द बिजनेस। व्हाट इज आवर जॉब हियर? वी हैव टू सपोर्ट देम। हमें सपोर्ट करना पड़ता है उनको, क्योंकि दे डोंट नो SAP, राइट? तो उनको हम लोगों को बैठना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड देन कोई भी इश्यूज अगर आता है, if they find that some expected result is not matching with the actual result, स्क्रिप्ट में क्या होता है? स्टेप्स होता है, स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए क्या डेटा चाहिए होगा वो होता है, ठीक है? उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए वो मेंशन होता है, एंड देन एक्चुअल रिजल्ट वो मेंशन करता है, राइट? तो फॉर एनी ऑफ द स्टेप्स अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर मैच नहीं कर रहा है एक्चुअल रिजल्ट से, तो वो लोग डिफेक्ट रेज करते हैं। दे विल बी रेजिंग द डिफेक्ट कि ये डिफेक्ट रेज हुआ। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वर्क ऑन दैट डिफेक्ट। उस डिफेक्ट में आपको काम करना पड़ता है एंड सॉल्व दैट डिफेक्ट बेसिकली। जब वो डिफेक्ट सॉल्व हो जाएगा तब वो स्क्रिप्ट पास होगा तुम्हारा। दिस इज हाउ द UAT works. Abhi, on the meantime, where this SIT UAT was going on, right? There is a cutover work also will be done by the solution architect people and all. Okay, all those people will be working on the cutover strategies as well. On the meantime, they will connect with us as a function. जो हमारा जो input लगे हमारा जो इनपुट लगेगा वी हैव टू गिव टू देम, ठीक है? तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कटओवर स्ट्रेटजी हियर। कटओवर किसे बोलते हैं तो समझना। कटओवर हो गया कि उसका जो भी लेगेसी सिस्टम या एक्जिस्टिंग सिस्टम है वहां से SAP में पूरा मूव करना। नहीं, कटओवर वो नहीं होता है। कटओवर इट इज लाइक कि मैं SAP इंप्लीमेंट कर रहा हूं, राइट? आई एम इंप्लीमेंटिंग द SAP। नाउ as a part of the implementation, मैंने तो डिजाइन कर दिया, I designed it in the system. Now that design is there in the is fixed, मैं उसको मूव कर सकता हूँ। तो क्या होगा? मैं टेस्टिंग किया, मैं उसको मूव कर दिया, फिर मैं SIT किया, मैं उसको मूव कर दिया, ठीक है? उसके बाद मैं उसको प्रोडक्शन पे मूव कर दिया, ठीक है? तो दिस इज समथिंग ट्रांसपोर्टेबल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी अ some work that will not be transportable. That is called as a cutover tasks. उसको हम लोग कटओवर टास्क बोलते हैं कि आपको प्रोडक्शन पे डायरेक्टली लॉग इन करके वो कटओवर टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा बिफोर द सिस्टम इज गोइंग लाइव, राइट? बिफोर द सिस्टम इज गोइंग, एंड नॉट ओनली प्रोडक्शन। आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, आपको डेवलपमेंट में वो स्टेप परफॉर्म करना पड़ा, फिर आपको सेम स्टेप, वो कटओवर स्टेप को आपको क्वालिटी में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, सेम स्टेप को आपको UAT में भी करना पड़ेगा। मतलब दिस इज नॉट समथिंग ट्रांसपोर्टेबल, वो अपने आप नहीं आएगा, आपको बार बार करना पड़ेगा। तो दोस टास्क आर कॉल्ड एज कटओवर टास्क, ठीक है? बहुत सारे टास्क, नंबर रेंज हम लोगों को करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे टास्क है जो कि हम लोगों को करना पड़ता है, एंड इट इज थ्रू आउट ऑल द टीम्स। दिस इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कटओवर, ओके? जहां पे आप हर एक टीम एक बड़ा सा फाइल बनता है जहां पे हर एक टीम अपना अपडेट करेगा कि भैया तुम्हारा क्या क्या कटओवर टास्क है। जैसे तुम यू आर फ्रॉम O2C, ऑर्डर टू कैश, राइट? फ्रॉम ऑर्डर टू कैश यू आर अपडेटिंग के आपका क्या क्या कटओवर टास्क है, कि ये कटओवर टास्क है। अब हर कटओवर टास्क के सामने यू आर असाइनिंग कि अच्छा ये कब एग्जैक्टली होना चाहिए प्रोडक्शन पे, इस डेट में होना चाहिए, इस डेट तक हो जाना, उसका एक डेट मेंशन कर देते हैं हम लोग। उसके बाद उसका हम लोग जो असाइंड होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑल दोस पीपल वी असाइंड इट, राइट? ये बंदा होगा, अगर ये बंदा नहीं हुआ तो ये बंदा करेगा। तो इस तरह से एक फाइल बनता है जिस फाइल में हम लोग ये सब चीज अपडेट करते हैं। So Wazi, is this kind of business hours or non-business hours during time Exactly. of whatever? I'm coming on that. अभी वो बाकी है, ठीक है ना? तो business hours and all. तो अभी this is one thing जहाँ पे the whole cutover file has been created, जहाँ पे every different areas के बंदे लोगों ने उसको डाल दिया कि गो लाइव होने से पहले, बिफोर द सिस्टम गो लाइव, क्योंकि बाकी सिस्टम पे तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, राइट? बट
जैसे ही मेरा सारा चेंज मूव होता है प्रोडक्शन सिस्टम पे यूएटी होने के बाद, लाइक सपोज यूएटी इज डन, तो उसके बाद बिफोर गेटिंग लाइव I need to do this task in the system, right? So every area will have that kind of task in that file. They will log in the production system and they will complete that cutover task. So that is one concept. दूसरा concept क्या होता है कि क्या होगा कि देखो, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा 1st February इज माई गो लाइव डेट, ठीक है? 1st February जो है वो मेरा गो लाइव डेट है। मतलब क्या हुआ कि from 1st February onwards, I'm not going to use the old system. I'm going to use the new systems only, right? SAP system को ही मैं use करूंगा। Now think about it कि 31st January तक का जो orders है, what will happen to those orders? उस order का क्या होगा? 31st January तक का जो मतलब ऐसा order जिसका मैं अभी तक डिलीवर किया ही नहीं हूँ, या फिर ऐसा डिलीवरी जिसका मेरा डिलीवरी ऑर्डर बना हुआ है लेकिन मैंने शिपमेंट नहीं किया है, शिपमेंट बाकी है, ऐसा डिलीवरी जिसका मैं शिपमेंट कर दिया हूं, बिलिंग कर दिया हूं, पेमेंट नहीं मिला है मुझे। तो दीज आर कमिंग एज ए ओपन ट्रांजैक्शंस, राइट? ये सब एक ओपन ट्रांजैक्शंस है, राइट? तो ये ओपन ट्रांजैक्शंस का क्या होगा सर? व्हाट विल हैपन टू दोस ओपन ट्रांजैक्शंस? क्योंकि दैट इज स्टिल पेंडिंग इन द ओल्ड सिस्टम, राइट? और व्हाट विल हैपन लाइक फ्रॉम 1st January? आर वी गोइंग टू कंटिन्यू with the old transaction in the old system and the new transaction new? तो इसका पूरा एक स्ट्रेटेजी बनता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि इन दिस स्ट्रेटेजी दे डिसाइड्स कि हम लोगों को कितना टाइम के लिए बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा, माइट बी बिकॉज आपका जो सारा चेंज मूव होता है, कट ओवर टास्क, सारा कट ओवर वर्क विल बी डन, राइट? इट विल टेक टाइम। तो यू कैन नॉट जस्ट डू द बोथ ऑफ द थिंग कि पुराने सिस्टम पे ऑर्डर आपका पड़ा हुआ है एंड देन यू आर स्टार्टेड वर्किंग ऑन द न्यू सिस्टम एज वेल। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी बनता है कि चलो मैं बिजनेस शट डाउन करता हूँ इस लास्ट वीक के लिए, एंड द लास्ट वीक माई माइग्रेशन और विल बी गोइंग ऑन, फाइनल माइग्रेशन विल बी गोइंग ऑन, and then we will not be taking any new orders from the customers. तो उस 1 वीक में क्या करेंगे, हम लोग पुराने सिस्टम्स का सारा ऑर्डर को क्लोज करेंगे। जितना पेमेंट नहीं हुआ था, पेमेंट पहले से अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर देंगे ये सब चीज का, ताकि वो पेमेंट कंप्लीट कर दे। तो ऑल द ओल्ड ट्रांजेक्शन वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन द ओल्ड सिस्टम्स, एंड देन देयर इज अ शट डाउन फॉर 5 days 6 days, डिपेंड करता है बिजनेस का स्ट्रेटेजी के ऊपर, राइट? एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम लोग फिर क्या करेंगे कि जो भी बचा हुआ ओपन ऑर्डर्स है, सारे तो क्लोज कर दिया, अब जो बचा हुआ ओपन ऑर्डर्स है, तो इन एसएपी सिस्टम वी कैन क्रिएट अ ओपन ऑर्डर्स, ओल्ड ओपन ऑर्डर्स हम लोग बना सकते हैं उसको, ठीक है? तो ऑल दोज ओपन ऑर्डर्स हम लोग सिस्टम में माइग्रेट कर सकते हैं, यू नो, वी कैन अपलोड ऑल दोज ओपन ऑर्डर्स, ठीक है, इन द एसएपी सिस्टम। अभी अपार्ट फ्रॉम द ओपन ऑर्डर्स देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट कट ओवर टास्क एज वेल, राइट? जैसे कि सपोज तुम्हारा एग्जैक्टली ऑन 31st, समझना, एग्जैक्टली ऑन 31st मेरा हर प्रोडक्ट का स्टॉक कितना था, राइट? दैट नीड्स टू बी अपलोडेड इन एसएपी, राइट? अब एक बार वो एसएपी में अपलोड हो गया, आप पुराने सिस्टम पे आप उसको इशू नहीं कर सकते, क्योंकि फिर रिकॉन्सिलेशन इशू हो जाएगा। ये प्रोडक्ट 31st जनवरी में मेरे पुराने सिस्टम पे 25 पीस था, तो मैंने उसको अपलोड कर दिया, एग्जैक्टली मुझे एक फिक्स टाइम मिल रहा है, उस टाइम पे ही आपको वो टास्क अचीव करना पड़ेगा, नॉट आफ्टर दैट, नॉट बिफोर दैट यू कैन डू इट, अदरवाइज रिकॉन्सिलेशन में इश्यू हो जाएगा। तो आपका स्टॉक कितना था, आपको एग्जैक्टली 31st और 1st Feb के बीच में आपको वो करना पड़ेगा वो काम। दैट इज व्हाई यू आर टेकिंग 5 days। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप 25 फरवरी से बिजनेस शटडाउन कर दे रहे हो, मतलब 25 फरवरी से आपका पुराना सिस्टम लॉक हो गया, यू आर नॉट डूइंग एनी ट्रांजैक्शन, तो आपको 5 days मिल गया वो कट ओवर टास्क करने के लिए, राइट? नाउ आप 25 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हो, आप सारा प्रोडक्ट का स्टॉक्स अपलोड कर रहे हो, आप कस्टमर का जो बैलेंसेस था कि ये कस्टमर का इतना बैलेंस है, राइट? वो कस्टमर का बैलेंस को अपलोड कर रहे हो अपने न्यू सिस्टम्स पे। तो ऑल दिस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द कट ओवर स्ट्रेटेजी वेयर यू अपलोड ऑल दिस थिंग्स, राइट? And then this is a simultaneous work. There is a team is working already on the cutover strategy. Whenever they need from you input, you will go and give the input to them. Master data upload, you also have to help on that. So all these things will be done, and then after successful UAT, final go live will be done. Go live मतलब
स्टार्ट हो गया आपका लाइव, द सिस्टम इज लाइव नाउ, या, एंड देन आफ्टर दिस गो लाइव, राइट, लाइव के बाद जो भी कंपनी इंप्लीमेंट करती है ना, दे विल हैव सर्टेन अग्रीमेंट्स के 4 वीक का सपोर्ट, 5 वीक का सपोर्ट उनको देना पड़ता है, 2 वीक का, डिपेंड करता है उनका कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर. दे हैव टू गिव द 4 और 5 वीक्स ऑफ सपोर्ट टू देम, ठीक है. उसके बाद फिर एक सपोर्ट टीम ऑन दिस मीन टाइम, राइट, जो सारा मीन टाइम हुआ, द केटी विल आल्सो बी रनिंग टू द सपोर्ट टीम. जो इम्प्लीमेंटेशन टीम होगा, दे वुड बी साइमल्टेनियसली गिविंग 1 hour केटी टू द सपोर्ट टीम एज वेल. यहाँ पे सपोर्ट टीम मेरा रेडी हो रहा है, पूरा सारा केटी के साथ वो रेडी हो रहा है. जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा 15 days 20 days के बाद वो हैंड ओवर ले लेगा. नाउ दे हैव टू सॉल्व द इश्यूज. द मोमेंट गो लाइव होता है ना, तो बहुत सारे इश्यूज आता है, देयर विल बी ह्यूज नंबर ऑफ इश्यूज विल बी कमिंग. तो फॉर फर्स्ट 2 weeks द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग ऑल दोज इश्यूज, ठीक है. लेकिन उसके बाद फिर सपोर्ट टीम के पास चले जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन टीम आस्ते आस्ते करके पूरा हट जाएगा वहां से. The whole burden is coming on the support team. They have to work and they have to solve all those issues. फिर वो incident management support team के ऊपर support project will be there after this. ठीक है? I have a question. Okay. Yeah, go ahead. For this cutover activity में जो 5 days का डाउन टाइम रहेगा, whatever the time, okay, वो डाउन टाइम में business will take new orders or not? No. Generally, they will not take new order. They will communicate to the customer. So it ultimately depends upon the strategy, what strategy that they are making. Generally they should not, मतलब वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे that we are not going to take the new orders at this moment. और अगर ऑर्डर लेते भी है तो वो लोग होल्ड में रखेंगे, they will not process might. So depending upon their strategy, ठीक है. It is not something fixed for globally. So that is what the ASAP methodology is. Vaji, I have one question. Go ahead. Do we have rollback option here? No, there's no rollback option. Once transportation got moved, is moved. Okay. Wajid, as you told that after, so in the previous slide, you have shown that there will be a business case, just that discussion call will be there, how business want the tool and how they want the UI, UX, what all enhancement development they want to make, they will tell us. Okay. But in the SOW or the scope of work, what you have said, or the statement of work, उसमें भी तो वैसे मेंशन होता है ना आपका साव में भी? किस में मेंशन होता है? सॉरी, साव में SOW. हाँ, नहीं मतलब सी SOW इज वेरी मच ऑन अ हाई लेवल, राइट, कि क्या हद तक वो लोग प्रोवाइड करेंगे. लाइक लाइक सपोज मैं बोलता हूँ, मैं अपग्रेड, मैं एक नया प्रोजेक्ट है मेरा अपग्रेड का, राइट. तो अपग्रेड प्रोजेक्ट में मैं SOW में ये लिखा हुआ है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिजाइन एनीथिंग न्यू, राइट. तो वेरी ऑन अ वेरी हाई लेवल इट विल से, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो ऐसा नहीं होगा ये बिजनेस रिक्वायरमेंट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो ऐसा बोल के कुछ नहीं होता. वेरी हाई लेवल इट स्पीक्स. क्योंकि since I'm working in a PMO team, that's why I'm saying this question, because जब भी हम लोग का SAO बनता है, तो before the SAO gets created, so we discuss with the client that what is the scope of the work. So एक business का हम लोग एक overview लेते हैं, as you said that we will take an evaluation from them. Accordingly, the solution architect, they do the design कि staffing कैसा रहेगा, how long the duration, and उसका costing क्या आएगा. On that basis, we decide the margin and do the pricing, all these things. Obviously, so on a high level, those things obviously will be done, but on a granular level, obviously on the granular will be subject oriented, right? कि क्या subject करना है, क्या. On a high level, those things will be there in the SOW. हाँ, क्योंकि वो client जब बता रहे हैं कि SD करना है, तो the solution architect will know that कि हाँ SD करने पे what all challenge will might come across, so what will be the duration. हाँ, अगर वो जल्दी खत्म होता, then it's a saving for us. If it takes longer time, in middle of project, they suppose we have this 5 modules might be, right. In middle of project, they cannot say they want the 6 modules as well. Yeah, we can always say it's not a change order. Correct. अच्छा, तो मेरे लिए ये वर्ड्स
थोड़ा न्यू लग रहा है वजी, because I That's have fine. not See, worked in this sales. is not something. This is not something that is regarding to SAP SD scope of work and all. This is a No, PMO. not this, not this. Like written order, receive message, credit memo, credit No, note. These are new to me. this thing something. This is something that we are going to learn. What is written? Okay. No, written order is not something new for any one of them, right? We return the goods. That is what the return order is. Like just think about it. I'm returning the goods. What the front company will do? They will do the return order, right? We receive the Return money order. exactly. If I give give the product back to the company, what will they give? They will give the credit memo to me. That is what the credit memo is. This is, see, sales is very much related to the general people. It is not something, if you take it as a subject, then you will think I might not know. But sales is very much, everyone is aware. We go to Shopper Stop, we do the shopping, we saw they scan the product, and then they we pay it, right? So it's totally fine. If you take it on that way, you will easily understand. But if you think it's a subject, might be you will not be able to relate much. Okay. Even in Acha. MM also, Vijay, if the quality of the product is not up to the mark as per the agreement, so definitely the company will return those product to the vendor. Exactly. Yeah. Fine. So even I am become tired now. So let's continue this. Vaji, one last thing, Vaji. Support. Vaji, ये class हम लोग का थोड़ा पहले कर सकते हैं कि हम लोग like 9 is like no 9 थोड़ा late मेरा हो रहा है. continuous batch है actually में. So this batch is finished last day. So that is why I normally start the batch, one batch end, and then I start the another batch. तो continuous है. मेरा time zone की वजह से ना I have a limited hours basically. तो अगर मैं सुबह करूंगा तो फिर सुबह एकदम बिल्कुल सुबह सुबह हो जाएगा मेरा. हाँ, आपके लिए नहीं. अगर आपका इस मान ले like 7 PM IST में कोई आपको जो अभी current class चल रहा है, if it's getting over like down the line in the next couple of months, so couple of months like that मेरे लिए भी वाजी भाई थोड़ा अगर पहले होगा तो बहुत अच्छा होगा. Fine. So I'll see. Couple of months after 2 months, that batch will be finished. So I can prepone it, or I will see if they are good, because normally people wants to do the course after 8 PM in the weekend, because might be they go to in weekend to somewhere, so they get that time, right? So you are the first batch who is telling that, okay, no, prepone it. No, I mean 9 PM it's fine for me. I'm not sure 9 about PM others. is fine for me as well. So 9 normally is a very good time, because you're completing all the weekend things and then finally settle down. But normally 6:30 is little like I go to movies. I'll not be back at 6:30. Yes, I agree. Yes, Vijay. 9 PM is fine for me. Fine, 9 PM. Achha, fine. Okay, chalo everyone. Thanks. We will continue this next week. Okay. Thanks. Chalo. Bye. Yeah. Thanks, Vaji. Okay, bye. Thanks, Vaji. Yeah, goodbye to everyone. Thanks, Vaji. Bye. Thanks.